Now I am going to cover a very important topic, that is intellectual property rights, and very important for protection of research. Okay, so in this session I would like to cover some fundamental points regarding intellectual property rights, then various facets of IPRs, that is patent design, trademark, geographical indication, and copyright. Some IPR databases which are very useful for conducting your review of literature also. Biopiracy and TKDL and patenting system in India. All these points I am going to cover. So friends, I always start with this slide. Yada yada hi dharmasya ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम्. देखिए, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें अंध धृतराष्ट्र जी को एक लाइव कमेंट्री सुनाई थी युद्ध की, संजय नामक व्यक्ति ने. तो जब भी हम ये पढ़ते हैं तो हमारा एक साइंटिफिक माइंड जो होता है वो जागृत हो जाता है. कैसे बताया होगा, राइट? तो हमारे रिसर्च प्रोसेस में एक स्टेप होती है assumption, दैट इज फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस. तो हम एक चीज यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं क्या कि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी वाज नोन टू द पीपल एट दैट टाइम आल्सो. इस युद्ध में काफी सारे अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग किया गया था, जैसे ब्रह्मास्त्र है, अग्निअस्त्र है, पर्जन्यस्त्र है, एटसेट्रा एटसेट्रा. Can't we compare all these astras and shastras with missiles, scud and atom bombs today? So another assumption will be there, that is weapon technology was known to the people at that time also. देखिए, हमारा जो मेडिकल साइंस है उसमें हम बहुत गर्व महसूस करते हैं. किडनी का प्रत्यारोपण पॉसिबल है, घुटने का पॉसिबल है, इवन ग्रीन कॉरिडोर्स आर देयर नाउ, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इज सक्सेसफुल. लेकिन ये गणपति बापा जो थे, दैट इज द head transplantation case. So one more assumption is there, that is, yes, medical sciences at that time were more advanced than of today. Okay. ये सब कहने का पीछे का एक मकसद था. ओके, देखिए, God has given brain, imagination and creativity to human being, and Mother Nature has placed us with abundant of physical and biological resources. ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके मैन स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू इन्वेंशंस. नए नए इन्वेंशंस वो करते गए, लेकिन उस वक्त वो पब्लिक डोमेन में जाते थे. लेकिन नाउ, एज ऑन टुडे, वी हैव अ साउंड लीगल प्लेटफॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स टू प्रोटेक्ट आवर इन्वेंशंस. So what intellectual property is? Intellectual property refers to creation of human mind. मानवी मेंदूचा आविष्कार म्हणजे बौद्धिक संपदा, right? It is the activity of human intellect. See, properties are of two types basically: chala sampatti, achala sampatti, movable and immovable properties. But there is one more recognized property nowadays, that is intellectual property. And when we talk about the term property, there are ownership rights. यानी प्रॉपर्टी है तो उसका मालिक भी होगा, सो ओनर भी होगा. See, कभी कभी क्या होता है, I have served patent information system, that is a special library of patents, that is the unique only one library in India. तो वहाँ पे 11 साल मैंने काम किया है, और वो तजुर्बा ऐसा कहता है कि जनरल पीपल जो होते हैं, दे आर नॉट मच अवेयर ऑफ एवरी फैसेट ऑफ आईपीआर. पेटेंट क्या है उनको पता नहीं रहता, बट पेटेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ट्रेडमार्क क्या है पता नहीं रहता, लेकिन दे यूज द टर्म. ओके, एंड क्लियर कर आइडिया ना होने की वजह से उनसे कभी कभी ऐसी भी चीजें निकलती है, जैसे क्या ना है, पेटेंट माय कॉपीराइटेड ट्रेडमार्क. यानी बड़ी शान से वो बोल रहा है और अगले वाला माथा पीट रहा है कि इनको क्या कहें, क्योंकि पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क, इसकी अलग अलग आइडेंटिटी है, अलग अलग यूटिलिटी है, राइट? सो ये बेसिकली डिफरेंसेस हमको पता होना एज ए रिसर्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. Intellectual property is divided into two parts, that is industrial property, that means the intellectual property which is exploited in industry, and the other part we have just discussed,
discussed, that is copyright and related rights. So, what can be copyrighted? Writings, musical works, dramatic works, audiovisual works, paintings, drawings, sculptures, photographic works, architectural works, sound recordings, performance of the artists, and broadcasting rights. While industrial property covers patent, trademark, industrial designs, and geographical indication. There are some other facets also like protection of life forms, traditional knowledge, domain names, digital copyright, integrated circuits, plant varieties, and farmers' rights, etc. See, friends, when we talk about property, ownership right will be there. When it is intellectual property, it is IPR. When you have idea and you express it creatively, that will become the copyright. To have idea, innovation, and invention is there, then you can claim for patent. When idea is there, it gives alarm about quality and identity, that is trademark. When idea is there with a beautiful, attractive appearance, that can be industrial design. And suppose you do not want to disclose the invention, you want to keep it confidential, that is the trade secret. See how a single commodity can be protected under IPRs from multiple directions. See, this is the attractive shape of the seat. That can be the matter of industrial design. इसके साथ जो बुकलेट आता है या टीवीएस की जो वेबसाइट है दैट कैन बी कॉपीराइटेड. देन इसका फंक्शनिंग जो है एक्चुअली दैट इज पेटेंटेड. और जो नाम से ये बेची जाती है मार्केट में दैट इज द लोगो, दैट इज ट्रेडमार्क. सेम हियर विथ कोका कोला. कोका कोला का ये जो सिंबल है दैट इज द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क. शेप ऑफ द बॉटल कैन बी द इंडस्ट्रियल डिजाइन. लेकिन इन्होंने कोका कोला फॉर्मुलेशन ऑफ कोक का पेटेंट नहीं लिया है बिकॉज दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज इट. दैट इज द ट्रेड सीक्रेट. राइट हियर patent rights are constructional features. This is the design. Then premier is the logo. और जो बुकलेट आता है that can be copyright. Functioning of camera can be patent. Nikon is the trademark and attractive and appealing look can be industrial design. देखिए टेलीविजन एक ऐसा कमोडिटी है जिसके बहुत सारे डिजाइन आपको मिलेंगे, कॉपीराइट मिलेगा, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के पेटेंट्स है, ट्रेडमार्क्स है, बहुत सारी कंपनियों की टेलीविजन बेचती है. Then how it is working in India? So this IPR office comes under Ministry of Commerce and Industry, Department of Promotion of Industry and Internal Trade. और सीजी जो होता है पेटेंट डिजाइन ट्रेडमार्क एंड जीआई का, इसके अंडर ये पूरे ऑफिसेस है. जैसे पेटेंट एंड डिजाइन के ऑफिसेस कोलकाता, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में है. ट्रेडमार्क के ऑफिसेस मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली, चेन्नई एंड अहमदाबाद में है. जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के ऑफिसेस जो है एक ही ऑफिस चेन्नई में है और कॉपीराइट ऑफिस दिल्ली में. और नागपुर में पेटेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. एंड अभी इट इज कन्वर्टेड इनटू RGNIPM, दैट इज राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जहाँ पे IPRs के एडवांस ट्रेनिंग कोर्सेस होते हैं. देखिए ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऑफिसेस मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन कॉपीराइट जो है इट इज द पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HR. ipindia.nic.in is the official website. आपको IPR के बारे में कुछ भी जानना है, you can go to this particular website. This is the link for RGNIPM. यहाँ से अगर आपको कुछ एडवांस कोर्सेज करने हैं IPR में, so you can see the schedules. Then public search is very important link for all of us, क्योंकि यहाँ से आपको सब पूरे इंडिया के IPR डेटाबेस का एक्सेस मिलता है. ई फाइलिंग इज पॉसिबल. आप घर पे बैठ के फाइलिंग कर सकते हो, पेटेंट का बोलो, ट्रेडमार्क का बोलो, तो ये लिंक है जहाँ से आप ई फाइलिंग कर सकते. ये देखिए ये एक ट्रेंड आपको दिखा रही हूँ कि ईयर वाइज एप्लीकेशंस कैसे कैसे आए पेटेंट्स के. आप देख सकते हो ये ट्रेंड जो है ये बढ़ते जा रहा है. डिजाइन का भी अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है.
और आप एक चीज नोट करेंगे तो ट्रेडमार्क के एप्लीकेशन सबसे ज्यादा है इन लैक्स। ओके, सो ट्रेडमार्क इज द मोस्ट पॉपुलर आईपी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के आप देख रहे हो एंड कॉपीराइट का आप देख रहे हो। सो इस प्रकार से ये ट्रेंड आपको दिखाई देता है 5 साल का। नाउ व्हाट पेटेंट इज? Patent is a grant of exclusive right provided by government to the patentee in exchange of his invention for a limited period for making, using, selling, importing products or processes and authorizing others to do so. मतलब एक सिंपल सी भाषा में बता दूं तो पेटेंट एक मोनोपोली राइट है। इट इज गिवन बाय गवर्नमेंट टू द पेटेंटी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम एज पर इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। हमारा जो ये है टर्म ऑफ पेटेंट वो 20 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। यानी 20 साल तक आप उस पेटेंट का मोनोपोली राइट एंजॉय कर सकते हो। और इसमें आपको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं? यू कैन मेक द प्रोडक्ट, यू कैन यूज इट, यू कैन सेल इट। आप आपका जो इन्वेंशन है उसको सेल कर सकते हो और आप उसके बदले में रॉयल्टी गेन कर सकते हो। इंपोर्टिंग प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस, या फिर आप दूसरे को वो किराए से दे सकते हो, राइट? दैट इज यू कैन give the authority to him that he will use it and he will pay the royalty in turn to you. So patent is an exclusive right. So jurisdiction of patent offices तय है, जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी एंड लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय एंड अमिनिद्वीप आइलैंड्स जो है वो लोग चेन्नई में अप्लाई करेंगे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जे एंड के, पंजाब, राजस्थान, यूपी, उत्तरांचल, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये लोग दिल्ली पेटेंट ऑफिस में ही अप्लाई करेंगे। while गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड गोवा, दमन एंड नगर दादरा नगर हवेली, दे विल अप्लाई टू मुंबई। अगर आप महाराष्ट्र में बैठे हो एंड इफ यू आर अप्लाइंग एट चेन्नई, so you are wasting the time, right? So you will have to file it in Mumbai Patent Office only. There are various IPR acts and rules in India, जैसे पेटेंट एक्ट 1970 का ओरिजिनल है, देन डिजाइन 2000 का है, ट्रेडमार्क 1919 का है, जीआई 1999 का है, देन कॉपीराइट एक्ट जो है ओरिजिनल 1957 का है। So these are all the acts and rules of IPRs. देन अगर आप देखेंगे कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो है तो उसमें टॉप 10 इंस्टीट्यूशंस रिगार्डिंग एप्लीकेशंस ऑफ पेटेंट्स के बारे में कौन सी है? तो आईआईटी फर्स्ट पोजीशन पे है, देन गांधीगढ़ यूनिवर्सिटी, शुलिनी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटी, एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, then Bharat University, then IIS, then Galgotias, and then Lovely Professional University. So these 10 are the top 10 applicants for patents. पेटेंट किसे दिया जाता है? व्हाट इज पेटेंटेबिलिटी? तो देखिए अगर आपका रिसर्च का एंड प्रोडक्ट इफ इट इज एन इन्वेंशन तो उसको पेटेंट दिया जाएगा। इन्वेंशन का मतलब क्या होता है? इन्वेंशन का मतलब ये होता है a new product or process involving an inventive step and capable of industrial application। मतलब उसमें नॉवेल्टी होना चाहिए, नया इन्वेंशन होना चाहिए। वो इट मे बी अ प्रोडक्ट, इट मे बी अ प्रोसेस, ठीक है, और उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पॉसिबल होना चाहिए। सो वो अगर है तो यू कैन बी ग्रांटेड द पेटेंट फॉर योर इन्वेंशन। अभी देखिए इन्वेंटिव स्टेप में आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांस। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए मैं आपको ये स्लाइड दिखाना चाहूंगी। आप यहाँ पे देख रहे हो, सी द टेलीफोन इन ओल्ड एज, दैट इज मेरे पिया गए रंगून किया है वहां से टेलीफोन वाला मॉडल। नाउ वी आर इन 4G एंड 5G। सो
every modification means technology advancement the field. Okay, so हर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में यू कैन गो फॉर अ न्यू पेटेंट. देखिए जैसे पैंडेमिक हम लोगों ने 2019 से हम देख रहे हैं, तो इट हैज चेंज द वर्ल्ड. जैसे ये थाई मॉल में आप देखेंगे ये लिफ्ट है, तो जो फ्लोर्स के बटन्स है वो उन्होंने पैर से दबाने वाले. सर न्यू technologies these are being used in these pandemics, right? Then जैसे सैनिटाइजर तो हमको पता था, लेकिन सैनिटाइजर स्टैंड एंड दैट टू द स्टैंड व्हिच इज ऑपरेटेड बाय लेग, तो ये हमारे लिए नया है. देन आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें थंब नहीं यूज करना है, हाथ नहीं यूज करना है. इन दैट केस दैट इज contactless screening module. You can see the invention. There is one more. IIT मंडी के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने फेस मास्क बनाए from plastic bottles, waste plastic bottles. Okay, so these are some of the inventions in this pandemics. देखिए कोई भी नॉवेल्टी अगर आप प्रूव कर सकते हो तो यू कैन क्लेम फॉर पेटेंट. दूसरा क्राइटेरिया होता है इनोवेशन. जैसे इनोवेटिव यूज आपने किसी चीज का ढूंढ के निकाला, सो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर पेटेंट. जैसे हमें ग्लू स्टिक पता थी, लेकिन ऑन द सिमिलर वे अगर हम बटर स्टिक बना देते हैं, दोनों का काम है स्प्रेड करना. एक ग्लू स्प्रेड करते हैं, एक बटर स्प्रेड करते हैं. सो दिस में भी द इनोवेशन एग्जाम्पल. देन अगर आप सेफ्टी पिन देखेंगे, कितना छोटा सा इन्वेंशन है सेफ्टी पिन. सेफ्टी पिन was invented by Walter Hunt and he applied for the patent. He got the US patent for safety pin that in 1849, and he sold his patent rights to industries in $400 in 1849. आप यहाँ पे देख सकते हैं, राइट. देखिए स्पेस नेट आप नोट कर सकते हैं. स्पेस नेट इज द largest patent database of the world. That is European patent database, and the page looks like this. And I have searched with the key terms safety and pin in this particular database, and I retrieved 1126 results. अभी आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे कि एक छोटा सा सेफ्टी पिन ही तो है, उसके इतने सारे पेटेंट्स कैसे. सो इन दिस वे सर कॉल्ड द डिजाइन पेटेंट्स. ये भी एक प्रोविजन पेटेंट में अवेलेबल है. सिर्फ हमारा जो कन्वेंशनल पेटेंट होता है उसका, जो टिपिकल पेटेंट होता है उसका टर्म ऑफ पेटेंट 20 इयर्स है, इसका 14 इयर्स. और वो पेटेंट को आपको हर साल रिन्यू करना पड़ता है. जनरल पेटेंट जो है रिन्यू करना पड़ता है. अगर आप रिन्यू नहीं करेंगे हर साल तो वो लैप्स हो जाता है. तो ये डिजाइन पेटेंट को रिन्यू नहीं करना पड़ता. देखिए मोर पुष्पिन कंपनी, अभी इसको भी यूएस का पेटेंट मिला है इन 1899. सी पुष्पिन्स. अभी in 1900 Mr. Edwin Moore founded a new company with only $112. His first sale was one gross, that is dozens of push pins for $2. The next order was for $75 and his first big deal of $1,000 worth of push pins to the Eastman Kodak Company. अगर आप स्पेस नेट पे पुश एंड पिन ये कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो यू विल रिट्रीव 187 रिजल्ट्स. और आप देख सकते हो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिजाइन पेटेंट्स. देखिए वेलक्रो, हम कहीं झाड़ियों में से गुजरते हैं तो हमारे कपड़ों को ये चिपकता है, गोगरू जिसे कहते हैं, है ना. तो जॉर्ज डी मिस्ट्रल एक स्विस इंजीनियर थे, उन्होंने इसका एनालिसिस किया एंड ही इन्वेंटेड वेलक्रो. उसको यूएस पेटेंट दिया. अभी देखिए ये वेलक्रो कितनी सारी इंडस्ट्रीज का, फुटवेयर इंडस्ट्री, क्लोथिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट बन चुका है. और जैसे नोवेल्टी और इनोवेशन, इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है पेटेंट टेबिलिटी का, और वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई डिवाइस या यंत्रणा बनाते हो, यू कैन क्लेम फॉर पेटेंट. नाउ यू कैन से दिस इज बाइसिकल स्टैंड. ठीक है,
उसके लिए जगह इतनी तो लगेगी पक्का। ठीक है। नाउ दिस इज वर्टिकल बाइसिकल स्टाइल। अभी ऐसे चीजों को पेटेंट मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। मार्केट एरिया में 50% स्पेस इज सेव्ड हुआ है। ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। टाइम रिलीज टैबलेट इज ऑल्सो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, क्योंकि यहाँ पे ये जो टैबलेट्स होती है वो उसके इंग्रेडिएंट्स ग्रेजुअली प्रोड्यूस करती है टू सस्टेन द इफेक्ट। Okay? So research is going on time release tablets also. There are some funny patents also. जैसे बहुत पहले 1876 में एक पेटेंट ग्रांट हुआ था। यू कैन सी दिस इज मुस्टैच गार्ड। देन यू कैन सी एनिमल ईयर प्रोटेक्टर्स, जैसे ये नीचे गिरे रहते वो खाने की थाली में वो डूबते रहते, तो उसके लिए उन्होंने ईयर प्रोटेक्टर्स बनाए। उसके बाद में पोर्टेबल बाथ कैप्सूल्स, दीज आर इम्पोर्टेंट इन्वेंशन है ये भी, क्योंकि पेशेंट जो बेड रिडन है तो उनके लिए ये काम आता है बाथ कैप्सूल। देन यू कैन सी दिस इज अनदर फनी पेटेंट दैट इज बियर ब्रेला। ये बियर गर्म ना हो में इसके लिए उसके लिए एक अम्ब्रेला बनाई। एंड दिस इज जूनियर जेल, जैसे बच्चों को आरामदायी बेड बनाया है। ठीक है ना, तो वो उसमें सेफ रहता है, रिलैक्स कर सकता है, तो इसीलिए उसको जूनियर जेल का नाम दिया है। यूएस का इसका पेटेंट है। कुछ कुछ इन्वेंशन ऐसे होते हैं जो वरदान होते हैं, जैसे एम्ब्रेस इनोवेशन। अभी जो प्री मैच्योर बेबीज होती है जिनको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, लेकिन गांव खेड़े में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है जिसको वरदान कह सकते हैं, दैट इज एम्ब्रेस इनोवेशन। देखिए ये केस स्टडी है। आयशा जो बेबी गर्ल थी, उसका जो बाय बर्थ वेट था 1.1 केजी, और उसके माता पिता ने उनके पहले दो बेबीज को खो दिया था बिकॉज वो इंटीरियर विलेज में रहते थे। वहां से वो शहर में आते आते वो बच्चा मर जाता था। राइट। तो उन्होंने डिसाइड किया उनका नेक्स्ट बच्चा जो है उसको हम शहर में जन्म देंगे। उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उनके थर्ड चाइल्ड का दैट इज आयशा का जन्म सिटी हॉस्पिटल में हुआ। उसका वेट 1.1 केजी था, तो उसको इंक्यूबेटर में रखा गया। लेकिन 10 दिन के बाद उनके पास के पैसे खत्म हो गए और वो सुविधा कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो उनको ये जो ये था एम्ब्रेस, उसमें इन्फेंट वार्मर उसमें रखा गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तकरीबन 1 मंथ तक वो उसमें रही एंड शी गेन्ड सफिशिएंट वेट, और फिर उसको डिस्चार्ज किया गया। तो दिस इज अ वेरी वेरी क्या कहते हैं हम, वरदान कहते हैं। राइट, हिंदी में वरदान है ये जो प्री मैच्योर बेबीज है उनके लिए। तो ऐसे भी इन्वेंशन होते हैं। देन व्हाट इज नॉन पेटेंटेबल इन्वेंशन। ओके, जैसे जो इन्वेंशन की डेफिनेशन में नहीं बैठता है वो, और एटॉमिक एनर्जी जहाँ पे नेशन की सिक्योरिटी के इंस्ट्रक्शन है वो पेटेंटेबल नहीं होते हैं। देखिए एन इन्वेंशन विच इज फ्रिवोलस और जो वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज के अगेंस्ट में जाते हैं वो पेटेंटेबल नहीं होता। चोरी करने के नायाब तरीके पेटेंटेबल नहीं होते। आपने शालीमार धर्मेंद्र का पिक्चर देखा होगा, तो कोहिनूर हीरा म्यूजियम से चुराता है, तो उसके लिए जो ब्लैक एंड व्हाइट जो टाइल्स रहती है, तो उससे मिलता जुलता कपड़े पहन के वो जाता है ताकि कैमरा डिटेक्ट ना करे। राइट। सो मेथड ऑफ थेफ्ट इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर, जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है वो कॉपीराइट होते हैं, उसको पेटेंटेबिलिटी से बाहर रखा गया है। Then you can see mere arrangement and rearrangement of two or more device cannot be patented. Then treatment of human beings and animals on the earth, may it be medicinal, surgical, curative, diagnostic, therapeutic.
ये ट्रीटमेंट पेटेंट नहीं होती है। ठीक? क्योंकि पेटेंट अगर मिल गया तो 20 साल तक मोनोपोली अधिकार होता है पेटेंटिंग का। राइट? तो अगर ओपन हार्ट सर्जरी का पेटेंट दे दिया किसी को तो वो अकेला ओपन हार्ट सर्जरी करेगा। देन मैथमेटिकल पेशेंस, देन कंप्यूटर प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम्स, तो ये कॉपीराइट का हिस्सा होते हैं। लेकिन कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होता है सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ एसोसिएटेड होके आता है, सो दैट कैन बी पेटेंटेड अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट। चलते हैं literary works, artistic works. Again, this is the part of copyright, multimedia productions, then television products, cinema. So वो कॉपीराइट में जाते हैं तो उनको राइट। उसके बाद में जो गेम्स खेलने के ट्रिक्स होते हैं, जैसे उसमें आमिर खान का एक फिल्म आया था कुश्ती का, वो 5 पॉइंट वाला ट्रिक जो था, राइट। तो ऐसे जो ट्रिक्स होते हैं एनीबडी कैन प्रैक्टिस एंड मास्टर अपॉन इट, वो पेटेंट नहीं होते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हो, सिग्नल्स है, ये ट्रैफिक के कुछ प्रेजेंटेशंस है। सो दीज आर ऑल द पार्ट ऑफ कॉपीराइट। देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स का भी एक अलग यूनिट है। और एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड जहाँ पे सीक्रेसी डायरेक्शंस है, ऐसी चीजें पेटेंटेबल नहीं होती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स इन होल और पार्ट कैन नॉट बी पेटेंटेड। और ट्रेडिशनल नॉलेज में क्या होता है कि लोगों को पूर्वजों से पता चलता है कि ये ऐसा ऐसा है, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक है, हम घर घर में पता है ये चीज, दैट इज द ट्रेडिशनल नॉलेज। ठीक है, हम हमारे बच्चों को बताते हैं, वो बच्चे उनके बच्चों को बताते हैं। सो ये नॉवेल्टी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता, क्योंकि नॉवेल्टी आप प्रूव नहीं कर सकते बिकॉज ऑलरेडी इट इज नोन टू द एंसेस्टर्स। So that cannot be patented. And methods of agriculture and methods of horticulture are not patentable. अभी देखिए, अगर आप पेटेंट एप्लीकेशंस इन इंडिया देखेंगे 5 सालों का स्टैटिस्टिक्स, तो ये फाइलिंग बढ़ते जा रहा है, ऐसे आपको दिखता है। एग्जामिनेशन भी बढ़ते जा रहा है। देखिए 16-17 और 17-18 में कितना डिफरेंस है, क्योंकि सिस्टम में मैन पावर बढ़ाई गई इस ड्यूरेशन में। और ग्रांटेड कितने हैं, तो ये ग्रांट भी बढ़ाया है, और डिस्पोजल कितने हैं, सो नंबर आर इंक्रीजिंग। इसके मैं डीप में नहीं जाऊंगी, लेकिन दिस इज एक्चुअली द पेटेंट प्रोसीजर इन इंडिया। जैसे आप पेटेंट फाइल करते हो, तो प्रोविजनल पेटेंट फाइलिंग का भी एक सुविधा आपके पास होता है। जैसे आपके पास में अगर कुछ आइडिया है, तो आप वैसे के वैसे लिख के उसको फाइल करके फाइलिंग डेट ले सकते हो फॉर द प्रायोरिटी सेक ऑफ। ठीक है, क्योंकि फाइलिंग डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है पेटेंट डॉक्यूमेंट में। तो आप अपने नाम से वो पेटेंट सिक्योर कर सकते हो। प्रोविजनल पेटेंट में यू विल गेट 12 मंथ्स एक्स्ट्रा टू डेवलप द पेटेंट। तो 1 साल में अगर आप फुल स्पेसिफिकेशन दे सको तो अच्छी बात है, वो स्क्रूटिनी के लिए चला जाएगा आगे। लेकिन आप नहीं देते हो तो ये प्रोविजनल पेटेंट आपका एबेंडेंट हो जाएगा। सो दीज आर ऑल द फाइलिंग प्रोसीजर्स। देन हम थोड़ा आगे चलते हैं। वाइपो करके एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिनेवा स्विट्जरलैंड में वो सिचुएटेड है। और वो बहुत सारे आईपीआर के अलग अलग क्षेत्रों में इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। देखिए कुछ डेटाबेसेस वो मेंटेन करती है, जैसे पेटेंट स्कोप है। पेटेंट स्कोप में भी आप कोविड-19 से सर्च कर सकते हो। देखिए इतने सारे पेटेंट्स जो है कोविड-19 के रिलेटेड में हमको यहाँ पे मिले हैं पेटेंट स्कोप में। तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उन्होंने पेटेंट डेटाबेसेस का भी इस्तेमाल रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लिए करना चाहिए, राइट। देयर इज वन मोर प्रोविजन ऑफ प्लांट वैरायटीज एंड फार्मर्स राइट्स। तो जैसे फार्मर अपने खेत में खेती करता है, तो वो नया नया रिसर्च करता है। मराठी में जिसको वाण कहते हैं, नया नया वाण वो के निकलता है। तो ऐसे नए नए
जो क्रॉप्स उसने ढूंढ के निकाला है, तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑफिस है प्लांट वैरायटीज का, जो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। एंड यू कैन सी दिस इज द होम पेज ऑफ दैट plantauthority.gov। और यहाँ पे प्लांट वैरायटीज का रजिस्ट्रेशन जो है वो होता है। सी अगर आप अभी काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, और आपको लगता है कि इसमें से आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, तो आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहली सावधानी तो ये है कि बिफोर फाइलिंग द पेटेंट आपको देखना है कि इट शुड बी न्यू। आपको उसमें से नॉवेल्टीज क्या है उसको पॉइंट आउट करना है ना। आपको बताना है कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर ये कहता है, लेकिन मेरे इसमें ये नई चीज है। अदरवाइज यू विल वेस्ट योर टाइम इन डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। और अभी एक चीज ध्यान में रखिए, हम एकेडमिशियंस, टीचर्स और रिसर्चर्स, हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि कोई भी अगर हमको ऐसी नई चीज मिली संशोधन में, तो हम क्या करते हैं कि तुरंत उसका अच्छे से पेपर लिख देते हैं और हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए। अगर आप उसका पेटेंट करना चाहते हो, तो डोंट डिस्क्लोज इट, डोंट पब्लिश इट। पहले आप जाके उसका प्रोविजनल पेटेंट फाइल कर दो, देन यू गो फॉर पब्लिशिंग। एंड डोंट शेअर युअर इन्व्हेंशन विथ एनीबडी। तुम्ही कोणत्याही पार्टीत बसलेले असाल तरी आपल्या मित्रांसोबत तुमचं इन्व्हेन्शन शेअर करू नका, कारण अशा घटना घडलेल्या आहेत की तुमच्या मित्रांनी तुमच्या आधी जाऊन स्वतःच्या नावाने ते पेटेंट केलेले आहे। सो डोंट डिस्क्लोज युअर इन्वेंशन टू एनीबडी। देखिए, इन्वेंशन कैसा होना चाहिए, शुडंट बी मोर कॉम्प्लेक्स। जैसे यहाँ पे जो काम अड़किता कर सकता है उसके लिए उन्होंने इतना जटिल मशीन बनाया है। जब सस्ती और अच्छी चीजें अवेलेबल है मार्केट में, और उसके बजाय आप महंगा और कुछ जटिल उपाय देते हो, सो उसके लिए पेटेंट ग्रांट नहीं होता है। द इन्वेंटर शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखिए, आपको जो पेटेंट डॉक्यूमेंट लिखना होता है उसमें आपको क्लेम लिखना होता है। क्लेम का मतलब ये होता है कि नयापन क्या है और किस चीज का आप मोनोपोली राइट मांगना चाहते हो टू दिस पेटेंट डॉक्यूमेंट, तो वो लिखना होता है। तो उसके लिए आपके दिमाग में कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यू शुड फुल्ली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन। देखिए, आपका इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए वांगुड़ी की जैसा। जैसे थ्री इडियट फिल्म आपने देखा है, आखिरी सीन याद कीजिए। उसका फोटोग्राफर और मित्र उसको बोलता है, अरे तू वही वांगुड़ी है जिसके नाम पे 400 पेटेंट्स है और पूरा जापान जिसे ढूंढ रहे हैं। तब आपका इन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि लोग, इंडस्ट्री वाले आपके पीछे घूमे, अरे हमको दो आपका इन्वेंशन, हम उसके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसके बदले में चाहे जो रॉयल्टी चाहिए वो ले लीजिए। ओके, सो देयर शुड बी डिमांड। देखिए, ये उन्होंने नॉवेल्टी क्राइटेरिया तो पूरा किया, 3 पैर का ट्राउजर बनाया, लेकिन इसकी डिमांड कहाँ हो? और इसको बेचने के लिए 3 पैर का आदमी आप कहाँ से ढूंढेंगे, राइट? सो देयर शुड बी अ डिमांड फॉर योर इन्वेंशन, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। देन द इन्वेंटर शुड हैव रियलिस्टिक आइडिया, उसके इन्वेंशन का वैल्यू क्या है, इसका पूरा आइडिया इन्वेंटर को होना चाहिए। फ्रेंड्स, हेड्स अप टू दिस पर्सन, ही इज रघुनाथ माशेलकर, एक सीईओ ऑफ सीएसआईआर। इन्होंने भारत के लिए एक पंचशील दिया था। वो कहते हैं भारत कैसा होना चाहिए, यहाँ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड फैमिली होना चाहिए, वुमन सेंटर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए, नॉलेज सेंटर्ड एंड इनोवेशन सेंटर्ड इंडिया होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा, राइट? भी उनको और एक्सपैंड करेंगे तो क्रिएटिविटी है तो इन्वेंशन है, इनोवेशन है तो पेटेंट है। पेटेंट जब तक उसको इंडस्ट्री नहीं मिलती तब तक ये डेवलपमेंट का साइकिल पूरा नहीं होता है। तो एज इज नो बार फॉर गेटिंग अ पेटेंट। एक 10 साल का बच्चा है लेकिन उसको पेटेंट मिला, उसने एक गेम, फैंटेसी गेम डिवाइस किया। देखिए, थॉमस एडिसन, उसको स्कूल से घर भेजा गया था और उसकी मम्मी उसकी गुरु बनी थी, राइट? तो के नाम पे 1093 पेटेंट्स है। अभी ये जो चीज आपको दिख रही है, ये क्या हो सकता है? अगर इसका गेस करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि जो फॉरेन कंट्रीज में ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड का जो पैकेट होता है उसके ऊपर का टैग है ये,
सो कितनी छोटी सी ये चीज है, लेकिन इसके लिए पेटेंट्स कितने हैं आप देख सकते हो, इतने सारे पेटेंट। विथ लिटिल बिट ऑफ मॉडिफिकेशन दे अप्लाई फॉर पेटेंट। एक पेटेंट है जो अब्राहम लिंकन के नाम पे है, और उसको प्रेसिडेंट्स पेटेंट के नाम से जाना जाता है। एनआरडीसी जो न्यू दिल्ली में कंपनी है, संस्था है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन, हर साल बेस्ट पेटेंट अवार्ड देती है। तो एक साल का ये पाचोरी वाला जी को मिला। तो उनका इन्वेंशन क्या था? तो केमिकल कंपनीज में जो गैलन्स बाहर निकलते थे उसमें मिलावट होती थी। तो उन्होंने ये गैलन्स के लिए एक पिलर प्रूफ ढक्कन बनाया, जो प्रेशर देके ऐसे जाके ऐसे लॉक होता है, और उसको खोलने में दिक्कत होती है। तो ये इन्वेंशन के लिए उनको बेस्ट पेटेंट अवार्ड मिला। अभी ये जो चित्र है, एक्चुअली ये आंख है, राइट? लेकिन वो भी बिल्ली की आंख है, और इसकी विशेषता ये है कि अंधेरे में चमकती है बिल्ली की आंख, राइट? तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये बिल्ली की आंख है। सो इससे इंस्पिरेशन लेते हुए ये कैटाइज का इन्वेंशन हुआ है। देखिए, अगर पेटेंट देना है तो इसको भी देना है, क्योंकि आग का इन्वेंशन हमारे आदि मानव ने किया था। तो पेटेंट के बारे में फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेसिस, आपको दिमाग में जब भी कॉन्सेप्ट आए उसको प्रोविजनल पेटेंट लेके अपने नाम पे सिक्योर कर लीजिए। दिस इज स्पेसनेट डेटाबेस, और इसमें आप सर्चिंग कर सकते हो फॉर योर थीसिस पर्पस। इस प्रकार से आपको लिस्ट्स मिलेंगे, एडवांस सर्च ऑप्शन इज देयर। और आप देखेंगे इस प्रकार से बिब्लियोग्राफिक डेटा, एब्स्ट्रैक्ट, देन ये डायग्राम्स और फुल स्पेसिफिकेशन आपको मिलता है। ये यूएसए का पेटेंट डॉक्यूमेंट है। ये ड्राइंग पेज है। दिस इज whole description, and these are the claims: 1 2 3 4 5 6 15 claims, right? That means exact monopoly rights कहाँ पे चाहिए वो। हर देश का एक नेशनल पेटेंट डेटाबेस होता है। इंडिया का भी है, जो आप पब्लिक सर्च लिंक से आप देख सकते हो। ये एक पेटेंट डॉक्यूमेंट है इंडिया का। अ, ये डेटाबेस को आप सर्च कर सकते हो, जैसे मैंने कंप्यूटर कीवर्ड दिया, सो आई रिट्रीव्ड 4723 पेटेंट्स। कोई भी एक डॉक्यूमेंट को आप क्लिक करके देख सकते हो। बिब्लियोग्राफिक डेटा एंड देन कम्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, इस प्रकार से। और ये एक जर्नल है, पेटेंट जर्नल। पेटेंट एप्लीकेशन जब भी आता है वो यहाँ पे पब्लिश किया जाता है फॉर गेटिंग द ऑब्जेक्शंस फ्रॉम द पीपल। देन फॉर्म्स एंड फीस के जो लिंक है, वहां से आपको हर एक टाइप का फॉर्म मिलेगा। This page gives you the history of Indian patent system. This is e-filing page, and this is our uh, database, that is InPass, Indian Patent Advanced Search System. These many parameters are there to search the Indian documents. Okay? ये हमारा एक इंडियन डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिट्रीव हुआ है, यू कैन सी these are drawings, bibliographic information, complete specification, and these are the claims, right? Now, friends, I am coming to second industrial property, that is industrial design. Industrial design means the attractive look of the commodity can also be saved as industrial design. तो इंडस्ट्रियल डिजाइन का टर्म जो होता है वो 10 years होता है, और 5 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है ऑन रिक्वेस्ट। अभी डिजाइन समझाने के लिए मैं आपको एक ही स्लाइड दिखाऊंगी, दिस वन। देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक के अलग अलग ब्रांड कंपनीज है, और हर ब्रांड के बॉटल का शेप अलग है, अगर आपने नोट डाउन किया होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि उन्होंने अपने डिजाइन, राइट? देखिए, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, जैसे ये आयरन है, वॉलेट है, क्लॉक्स है, पेन है, टूथब्रशेस है, ओके। All these can be protected under
industrial design. Then pharmaceutical products है, syringe, capsules, the test tubes and all, ये इनका भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है. टेक्सटाइल एंड ज्वेलरी का भी इंडस्ट्रियल डिजाइन है. देन टूथब्रश के डिजाइन आप देखेंगे कोई दुकान में जाके तो वही आपको 10-12 डिजाइन निकाल के देगा. देन हम देखेंगे ये जो डिजाइन का डेटाबेस है इंडिया का, वो इस प्रकार से आपको दिखता है, राइट. ये डिटेल्स आते हैं एंड यू कैन सर्च फ्रॉम दैट पब्लिक सर्च लिंक. नाउ आई एम कमिंग टू द मोस्ट पॉपुलर industrial property, that is trademark. What trademark is? Trademark is a visual symbol in the form of a word, a device, or a label applied to articles of commerce as distinguished from similar goods manufactured or dealt in by others. देखिए ये ट्रेडमार्क जो होता है उसका मार्केट वैल्यू होता है. मार्केट में प्रोडक्ट ट्रेडमार्क के नाम से बेचे जाते हैं, दैट इज द ब्रांड नेम, ब्रांड लोगो. देखिए अलग अलग प्रकार के ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कोई लेटर्स और वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, जैसे एप्सन है, बाटा है, गोदरेज है. देखिए अगर आप आंख बंद करके गोदरेज शब्द का उच्चारण करेंगे तो आपके सामने गोदरेज का जी ऐसे ही आएगा. दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेडमार्क ऑन योर माइंड. देखिए ये आप देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ट्रेडमार्क्स है जो लेटर्स, डिजाइन, लोगोस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिकॉन ग्राफिक्स है, सन है. कुछ कुछ ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो ट्रेडमार्क्स अपने साथ में एक पंच लाइन यूज करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टैगलाइन. जैसे हमारा जो मूनलाइट स्टूडियो है बरडी में, नागपुर का, तो वहां पे आप एक पिकुलियर चीज नोट करेंगे, वहां पे लिखा है, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल वी विल मेक यू ब्यूटीफुल एंड इफ यू आर ब्यूटीफुल वी विल कैप्चर योर ब्यूटी. तो ऐसे ही एक ट्रेडमार्क का ही एक हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड एज पंच लाइन. So here are some popular taglines. Life is good. See, life is good. It is LG. इससे सस्ता और अच्छा कहीं नहीं. It is a big bazaar. Connecting people. It is Nokia. The world's local bank. It is HSBC. Then comes अच्छा लगता है. It is Club HP. It's all about engineering L&T. Then जाओ तो जानो. Truly Asia. It is Malaysia Tourism. And taste भी health भी. It is Maggi noodles. इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, टाटा स्काई. ठंडा मतलब कोका कोला, प्योर फॉर श्योर. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पंच लाइन. जैसे आई एम लविंग इट, मैकडोनल्ड्स. कुछ पिक्चर्स और ड्राइंग्स का इस्तेमाल करते हैं कुछ ट्रेडमार्क्स, जैसे एमएसएन बटरफ्लाई है. उसके बाद में एप्पल कंप्यूटर्स है. ओके. कहीं कहीं साउंड ट्रेडमार्क होते हैं जिसमें साउंड का इस्तेमाल किया जाता है. इसके ऊपर पूरे नियम ट्रेडमार्क के ही होते हैं, लेकिन सिर्फ एक्सप्रेशन जो होता है वो साउंड का होता है, जस्ट लाइक ट्रेडमार्क. जस्ट अ सेकेंड. देखिए ये विंडोज का स्क्रीन ओपन होता है तो एक पिक्यूलियर साउंड आता है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ साउंड मार्क्स. ये देखिए न्यूज चैनल्स के, जैसे जी न्यूज, आज तक, स्टार न्यूज, हर एक के अपने अपने ट्रेडमार्क्स है. अभी एक सिंपल सी चीज है, आप रेल से प्रवास कर रहे हो और आपको अगर मैं ये बॉटल 5 रुपए में दूं, शुद्ध मिनरल वाटर है, पक्का आप नहीं लेंगे. क्यों? तो इसके ऊपर में लेबल नहीं है, राइट. हालांकि ये पानी बहुत अच्छा पानी है, शुद्ध पानी है और आपके लिए हार्मफुल पानी नहीं है, लेकिन ये बॉटल आपको दूं तो आप 20 रुपीज आराम से देंगे. क्यों? क्योंकि आपको ये स्टिकर मिलेगा वहां पे, बिस्लेरी. देखिए क्या है, हमारे दिमाग में इन चीजों का राज्य बना हुआ है. बिस्लेरी यानी आंख मूंद के हम ले लेते हैं और पानी गटगट पी जाते हैं, भले ही वो कंटेमिनेटेड वाटर हो, लेकिन वो लेवल से ही हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो ये होती, जागरूक होती, राइट. तो
हमने आपको पहले ही कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में जो फैसेट्स है, दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज। तो उसका बेचना पॉसिबल है क्या? हाँ, आप अपने एस्टेब्लिश ट्रेडमार्क को बेच सकते हो। जैसे किंग फिशर का जो विजय माल्या ने ट्रेडमार्क बेचने के लिए निकाला था, राइट? तो एक सर्वे हुआ था, तो उसमें जो ऑक्शन हुआ ट्रेडमार्क्स का, उसमें टॉप मोस्ट पे कोका कोला था और बोली लगी थी $68.9 बिलियन। सेकेंड नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट था, $65.1 बिलियन। थर्ड नंबर पे आईबीएम और फोर्थ नंबर पे नोकिया था। देखिए, वाई बिस्लेरी? बिस्लेरी इंटरनेशनल कंपनी है, इट हैज वैल्यू, इट हैज रेपुटेशन, और सबसे ज्यादा महत्व की चीज है कि हमको उसके ऊपर विश्वास है। अभी देखिए, ये जो बेनिफिट्स क्या होते हैं ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट उसका कंसर्न जो है वो मार्केट से रहता है। दूसरी चीज, अगर कोई आपके ट्रेडमार्क को वायलेट करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। जैसे आदिदास को अभी भास्कर, आउटलुक को हिंदी में लिख दिया आउट, दे हैव यूज्ड द सेम कलर कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे लगता है हमको कि अरे ये जो आउटलुक अंग्रेजी मैगजीन है उसी का ये हिंदी वर्जन तो नहीं, लेकिन दोनों का आपसी में कोई संबंध नहीं है, राइट? सो रजिस्टर करने के फायदे ये है कि कहीं पे कोई वायलेशन हुआ तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। अभी देखिए, हमारा पूरा लाइफ कैसे ट्रेडमार्क में है वो हम देखेंगे। मैं पढ़ते जाती हूँ, यू जस्ट एंजॉय द थिंग्स। 6 a.m. Ajanta Citizen, 6:30 a.m. Colgate Close-Up, 7:30 a.m. Nescafe Taj Mahal Red Label Taza, 8 a.m. Dettol Lifebuoy Lux Synthol, 8:30 a.m. Kisan Fruit Jam Maggi Tomato Ketchup Kellogg's, 9 a.m. Maruti Suzuki Hero Honda TVS Toyota, 9:30 a.m. IBM Lenovo SCL HP, 10:30 a.m. Yahoo Reddit Gmail Hotmail, 11:30 Canon Fax Intercom, then 1:30 McDonald's, Domino's, Pizza Hut, Sagar Ratna. Then 6 p.m. PVR, Big Cinema, V-Mart, Easy Day. 8 p.m. Sony, Star Plus, Discovery, CNN. And 10 p.m. Good Night, All Out, Jet. देखिए, हमारा पूरा लाइफ जो है, हमारा पूरा दिन, वी यूज ट्रेडमार्क प्रोडक्ट्स। ये कुछ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री के ट्रेडमार्क्स है। एंड देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क्स, जैसे सर्विस मार्क्स होते हैं, टीटीडीसी। टीटीडीसी जो है वो आपको सर्विस देता है, कुरियर सर्विस। ठीक है, तो उसका जो मार्क होता है वो सर्विस मार्क के नाम से जाना जाता है। देन यू कैन सी आईएसआई। आईएसआई का टप्पा लगा तो वो सर्टिफिकेशन मार्क रहता है कि यस दैट क्वालिटी इज देयर। और मर्सिडीज जैसे जो मार्क्स है वो दीज आर वेरी फेमस इन द मार्केट, सो दीज आर कॉल्ड एज वेल नोन मार्क्स। अभी सर्विस मार्क जो होता है, जैसे एयरलाइंस का है, जैसे किंगफिशर एयरलाइन का मैंने आपको बताया, उड़ानों वाला, दैट इज द सर्विस मार्क। टूरिस्ट एजेंसीज, लॉन्ड्रीज, इनके जो मार्क्स होते हैं, दीज आर सर्विस मार्क्स। इसमें देखिए, ये क्यों सबसे पॉपुलर आईपी है? क्योंकि पेटेंट 20 साल के बाद में पब्लिक डोमेन में आता है, एनीवन कैन यूज इट। डिजाइन जो होती है वो 15 साल के बाद में लैप्स हो जाती है। लेकिन ट्रेडमार्क ऐसी चीज आहे जो आप पिढ्यानुपिढ्या तुम्ही त्याचा वापर करू शकता, कारण दर 5 वर्षांनी तुम्ही त्याला एक्सटेंड करू शकता। every 5 years, after every 5 years you can extend it। अभी देखिए, जैसे फेक प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं। फेक प्रोडक्ट सेम कलर कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेलिंग है, असली स्पेलिंग, उसमें वैसलीन, न्यू वैसुलाइन, ब्लू लाइन वैसुलिन, वैसुटुलाइन, इस प्रकार से वो आपको मिसगाइड करते हैं और फेक प्रोडक्ट थमा देते हैं। नाउ वी विल सी टू केसेस। देखिए, इंफ्रिंजमेंट की टू केसेस है। एक है लैक्मी, दूसरी सौंदर्य प्रसाधन कंपनी है, उन्होंने अपने ब्रांड का नाम लिखा लाइक मी। तो जो बायर्स थे कंफ्यूज हो गए, वो लैक्मी समझ के लाइक मी को घर ले जाने लगे। तो लैक्मी ने उसके अगेंस्ट केस किया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट held that there was a striking resemblance between the two words. The two words are also phonetically similar.
and there is every possibility of deception and confusion being caused in the minds of prospective buyers. ना? तो इस प्रकार से इंफ्रिंजमेंट कोलगेट के बारे में भी हुआ था, सेम रेड एंड व्हाइट कलर यूज किया और वो डेंटल क्रीम के दूसरे ब्रांड ने नाम दिया कोलिजेट। यहाँ पे भी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस था, उसके उच्चार सिमिलर थे और यहाँ पे भी वो केस प्रूव हो गया, कोलगेट एंड कोलिजेट, राइट। ये देखिए, ये ट्रेडमार्क का ऑफिशियल होम पेज है। आप यहाँ पे उसके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शंस देख सकते हो ऑफिसेस की। ट्रेडमार्क का ये ई रजिस्टर है जो सर्चेबल है। मैंने गोदरेज सर्च करना चाहा मैंने जीओडी 3 वर्ड्स दिए। देखिए, जैसे इसको गोदावरी को मैं क्लिक करती हूँ तो ये व्यापार चिन्ह का सर्टिफिकेट मिलता है आफ्टर अप्रूवल। ये ट्रेडमार्क है। जैसे एप्पल के ये बहुत सारे ट्रेडमार्क है, यू कैन सी। ट्रेडमार्क का एक डेटाबेस है इंटरनेशनल लेवल का, जिसे मैड्रिड एक्सप्रेस डेटाबेस कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने होल्डर नेम में माइक्रोसॉफ्ट दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट के 85 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सी दिस जो साइन है इससे आप वाकिफ हो। अभी चौथी है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। व्हेन द प्रोडक्ट इज नोन बाय इट्स जियोग्राफिकल नेम, तो उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अंडर जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। एग्जांपल्स इसके हैं दार्जिलिंग टी, नागपुरी संतरा, वेरी सारी, देन मैसूर रोजवुड इनले, कोल्हापुरी चप्पल, देन यू कैन सी सोलापुर चादर, कुल्लू की शॉल, मैसूर सैंडल सोप, राइस में बासमती एंड नेलोर राइस, गेहूं में पंजाब और एमपी का गेहूं, फ्रूट्स में अल्फांसो मैंगो, देन कुर्ग ऑरेंज, नागपुर ऑरेंज, एंड टेक्सटाइल्स में पोचमपल्ली कैट, कांचीपुरम साड़ी, कोटाडोरिया, कोल्हापुर की चप्पल, देन दिस इज कोटाडोरिया, चंदेरी साड़ी, दिस इज मैसूर सिल्क, दिस इज कांचीपुरम साड़ी, सोलापुर चद्दर एंड टेरी टॉवेल, देन कुलू शॉल, देन फूड स्टफ्स में बीकानेर की भुजिया, आंध्रा के पिकल्स, लोनावला की चिक्की, देन तिरुनावली का हलवा, आगरे का पेठा, इधर कुर्ग ऑरेंजेस, नांजाना गुड़ बनाना, कांगड़ा टी, दिस इज दार्जिलिंग टी। देखिए, दार्जिलिंग इज द नेम ऑफ द प्लेस और वहीं का जो टी होता है वो वर्ल्ड फेमस होता है। तो इसकी भी एक कंट्रोवर्सी है कि नेपाल, भूटान, तिब्बत, ये जो देश है, वो लोग क्या करते थे, दे यूज दिस सिंबल और दार्जिलिंग टी के नाम से खुद के यहाँ उगने वाला चाय बेचते थे। तो हमने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। हमने उनको बताया कि दार्जिलिंग इज द प्लेस जहाँ का टी वर्ल्ड फेमस है, यू कैनॉट यूज दैट नेम। और हमारा जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन का ऑफिस खुला, उसमें सबसे पहला जीआई जो है इंडिया का, वो दार्जिलिंग टी का है। देन मैसूर अगरबत्ती, मैसूर सैंडल सोप, देन दिस इज मीरर, ओके, अरानमुला कन्नड़ी, देन चन्नापटना करके एक गांव है नियर चेन्नई, वहाँ के टॉयज फेमस है। देन मैसूर का ये रोजवुड इनले फेमस है। और कोयम्बतूर का ये वेट ग्राइंडर, जिसमें ये ब्लेड्स की जगह पत्थर रहते हैं, इज फेमस। तिरुपति बालाजी का जो प्रसाद होता है लड्डू, दैट इज वर्ल्ड फेमस और उसका जीआई हो चुका है। देन वाइन्स एंड स्पिरिट्स में गोवा की फेनी, देन शैंपेन, स्कॉटलैंड की विस्की, तो ये सब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का एक ही ऑफिस है इंडिया में, दैट इज सिचुएटेड एट चेन्नई। और ये कौन अप्लाई कर सकता है, हु कैन अप्लाई फॉर जीआई, इट इज नॉट एन इंडिविजुअल राइट। तो कोई एनजीओ, कोई एग्रीकल्चरल ऑफिस या फिर कोई व्यापारी संघ उसे अप्लाई कर सकता है। सी दिस इज द ऑफिशियल पेज ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यू कैन सी। और अभी तक जो जियोग्राफिकल इंडिकेशंस मिले हैं, तो उसका ये एक लिस्ट है, आप देख सकते हो। और मैंने एक स्टडी किया था तो उसमें ऐसे पाया गया कि साउथ इंडियन स्टेट्स जो है वो इस कॉन्सेप्ट से अवेयर है, ज्यादा अवेयर है। और ये जीआईएस जो है वो 4 विभागों में दिए जाते हैं, एक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, क्राफ्ट्स, मैन्युफैक्चर्ड एंड फूड स्टफ्स के लिए, और कुछ एग्रीकल्चरल रजिस्टर्ड जीआईएस जो है
उसमें एग्जाम्पल्स है पलाकदन मट्टा राइस, मैसूर बिटल लीफ फ्रॉम कर्नाटका, देन मलबार पेपर ऑफ केरला, देन जैस्मिन में मैसूर जैस्मिन, उडुपी जैस्मिन एंड हड़ागली जैस्मिन, देन जो इलायचीज है उसमें अलापल्ली और कुर्ग फ्रॉम केरला एंड कर्नाटका आर वर्ल्ड फेमस, देन नागा मिर्चा ऑफ नागालैंड। और आम अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मण भोग जो है वो वेस्ट बंगाल का, खिरसापति हिमसागर वेस्ट बंगाल, फाजली मालदा का फेमस है, और जो दशहरी है ना, वो यूपी का फेमस है। सो दीज आर सम जीआईस फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणेरी पगड़ी, देन महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी, येवलाची पैठणी, कोल्हापुरी सास, लोनावला चिक्की, इट इज नागपुरी संतरा, भुसावली केला, और नासिक के ग्रेप्स। ओके, तो जब भी कोई एप्लीकेशन आता है उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशंस के जर्नल में पब्लिश किया जाता है, कुछ ऑब्जेक्शंस है तो उसको रूल आउट किए जाते हैं और फिर उसको दिया जाता है। हमारा जो ऑनलाइन डेटाबेस है उसमें देखिए रजिस्टर्ड को क्लिक करेंगे तो ये पूरे रजिस्टर्ड जीआईस आएंगे, आप ये देख सकते हो, दीज आर रजिस्टर्ड जीआईस। और जैसे मैसूर सिल्क स्टेटस बता रहा है रजिस्टर्ड, और ये उसका जीआई नंबर है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट जीआई जिसको मिलता है और वो एक्सपोर्ट होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। ये पूरा करस्पॉन्डेंस है उस चीज का, आप देख सकते हो। जैसे गोवन पेनी जो है उसका एप्लीकेशन नंबर 120 है। देन पेंडिंग में जो है बासमती राइस, अल्फांसो मैंगो अभी हो गया है, इट इज नॉट पेंडिंग नाउ। हैदराबादी बिरयानी, जैसे हैदराबादी बिरयानी के बारे में आपको देखना है तो उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। ओके, नाउ फ्रेंड्स आई एम कमिंग टू another important aspect of this IPR। तो सबको पता है कि अपना भारत देश सुजलाम सुफलाम है, प्रकृति का इसको वरदान है। देखिए हमारे पास में कुछ एंटी एंशियंट स्क्रिप्चर्स है डॉक्यूमेंटेड। हमारे पास 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 2 एपिक्स है। हमारे पास में धर्म ग्रंथ है जैसे भगवत गीता, देन पुराण है, ब्रह्म सूत्रास है, 18 पुराणास है, मनुस्मृति, कौटिल्य शास्त्र एंड स्मृतिज है। और सुजलाम सुफलाम इसलिए है क्योंकि हमारा देश फ्लोरा और फौना बहुत समृद्ध है। पूरे वर्ल्ड में 26 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें से 16 केवल इंडिया में है। सो ऐसा समृद्ध देश है हमारा। और हमारे पास में ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत सारा है। हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसके प्रॉब्लम्स जो है इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली, इसका ओरिजिन ट्रेस करना डिफिकल्ट है। कभी कभी ऐसे होता है कि हम कहते हैं कि हाँ वो आदमी के हाथ में सिद्धि है ना। जैसे नागपुर में एक मानकापुर में एक शख्स है, ये कॉलर बोन टूटता है ना तो वो लेप लगा के देता है तो वो जल्दी हील होता है, बहुत फेमस आदमी है वो। कभी कभी ऐसी सिद्धि जो उनकी होती है, उनका नॉलेज जो होता है वो पर्सन के साथ में ही चला जाता है, वो क्या डिसअपियर हो जाता है। और अवेयरनेस हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज और आईपीआर के बारे में कम है तो प्रॉब्लम्स आते हैं। हमारा मेडिकल साइंस जो है वो आयुष से बना है। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिंधा एंड एच फॉर होम्योपैथी। हमारा आयुर्वेद जो है वो बहुत ही रिच है। और हमारे पास में नॉलेज है बहुत सारे प्लांट्स का, मेडिसिनल प्लांट्स का। अभी देखिए ये जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, तो बीच का जो समय था 1995 टू 2005, उसमें हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज का बायोपायरेसी शुरू हुआ, यानी वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो हमारा ये सब नॉलेज जो है उसको चुरा के उसको उनके देश में पेटेंट करने का काम कर रही थी। दैट इज नोन एज बायोपायरेसी। और अगर आप देखेंगे कि 2002 में 80% जो पेटेंट्स थे वेस्टर्न कंट्रीज के, उसमें हमारे केवल 7 मेडिसिनल प्लांट्स का उल्लेख किया गया था, लेकिन 2004 में वो 15,000 हो गया और 2005 में 35,000 हो गया। तो ये जब हम देखते हैं तो बायोवायरेसी बहुत भयंकर गति से बढ़ रही थी। और सबसे बड़ा उदाहरण जो हुआ वो हल्दी का।
देखिए, मिसिसिपी मेडिकल सेंटर जो है यूएस में, उन्होंने वहां पे सुमन के दास और हरिहर कोहली, जिनके वंशज भारतीय थे, उन्होंने हल्दी का पेटेंट अप्लाई किया फॉर इट्स एंटीसेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, और यूएस ने उनको पेटेंट भी ग्रांट किया इन 1995। अभी हमारी हल्दी गई, हमारे ऊपर में निर्बंध आ गए कि हमारा वो पेटेंटेड है, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। तो फिर सीएसआईआर ने ये केस को लड़ा, और उन्होंने बहुत सारे हमारे एंशियंट लिटरेचर सर्च किए। उसमें देखिए एक और 32 ऐसे एविडेंसेस कोर्ट को दिए कि हल्दी एंटीसेप्टिक है, ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। 1995 में पेटेंट उन्होंने दिया यूएसए ने, लेकिन ये एक सबूत था जहाँ पे देखिए उर्दू में कुछ लिखा है, ये 1879 में लिखा है, ये दूसरा है, ये भी एक प्रूफ दिया। पहला वाला जो था उसका ट्रांसलेशन ऐसा था, हल्दी हल्दी पाउडर क्यूअर्स जॉन्डिस एंटी इन्फ्लेमेटरी वुंड हीलिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है, और ये 1879 में लिखा है, और पेटेंट दिया गया 1995 का, व्हेन इट इज ऑलरेडी नोन। तो नोवेल्टी क्राइटेरिया कैसे पूरा किया? दूसरा जो था उसमें लिखा है आई ऑइंटमेंट हल्दी एनाल्जेसिक एंटीसेप्टिक वुंड हीलिंग, ये लिखा गया था 1867 में, अगेन पेटेंट मिला 1995 में। तो नोवेल्टी क्राइटेरिया पूरा न करने की वजह से वो जो क्लेम था उनका, वो पेटेंट को खारिज किया गया, रिवोक किया गया। तो ऐसे हम क्या क्या वापस लाएंगे, क्या क्या रिवोक करेंगे? हाँ, आए दिन आते, हमारा हिरड़ा गया, हमारा जामुन गया, हमारा नीम गया। तो इस प्रकार के बायो पायरेसी को कंट्रोल करने के लिए हमारे भारत देश ने, जैसे नीम के भी बहुत सारे पेटेंट्स जो है वो यूरोपियन कंट्रीज ने पेटेंट किए हुए हैं, आप देखेंगे उसको। तो हमारे भारत देश ने एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज टीकेडीएल, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। सीएसआईआर का ये इनिशिएटिव है, और उन्होंने क्या किया, आयुर्वेदा की 75 क्लासिक बुक्स, यूनानी की 10 बुक्स, सिद्धा की 50 और योगा की 13 बुक्स एक्सपर्ट्स को दिए। उनको कहा कि आप लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ो, जहाँ पे भी मेडिसिनल प्लांट का उल्लेख आता है उसकी एक एंट्री बनाओ। ये एक्सपर्ट्स ने मोर देन 2 लाख एंट्रीज बनाई, और ये एंट्रीज जो है वो टीकेडीएल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश कर दी, और एक लेटर पूरे विश्व की पेटेंट ऑफिसेस को लिखा कि दिस इज आवर डिस्क्लोज ट्रेडिशनल नॉलेज। आप जब भी कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन एग्जामिन करते हो, तो आप ये पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को जरूर देखिएगा, दिस इज आवर ट्रेडिशनल नॉलेज, और इसके बेस पे आधारित आप पेटेंट नहीं देना है। उसका रिप्रेजेंटेटिव डेटाबेस 1200 का, आप खुद भी सर्च करके देख सकते हो। जैसे मैंने इसमें मलेरिया कीवर्ड डाला था, तो इस प्रकार से एंट्रीज मुझे मिली। देखिए टीकेडीएल के आउटकम्स क्या थे। जैसे टोटली आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे पेटेंट्स रिवोक हो गए, और बहुत सारे पेटेंट्स को एग्जामिनेशन स्टेज में कैंसिल किया गया आफ्टर चेकिंग विद टीकेडीएल। ठीक है, अभी देखिए ये ट्रेडिशनल नॉलेज रहता है ट्राइबल पीपल में, और ट्राइबल पीपल जो है उनको मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज काफी रहता है, राइट। हर पैथी में अलग अलग मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई वुड लाइक टू टेल यू वन एक्सपीरियंस। केरला की घाटी में एक कानी नाम का ट्राइब रहता है। तो उनका काम क्या है कि केरला की घाटी में जो भी पर्यटक आते हैं उनको रास्ते दिखाना जंगल में। तो पुष्पगदन जो आरआरएल जम्मू में साइंटिस्ट थे, वो अपनी टीम को लेकर केरला गए 1987 में, और उन्होंने अपने साथ में कुछ कानी ट्राइब के लोगों को लिए, और वो जंगल में चले गए। इट वाज दिसंबर 1987। थोड़ी देर होने के बाद में उनको भूख लगी, उन्होंने फूड कानी ट्राइब को भी ऑफर किया, तो उन्होंने नहीं कहा। और वो जो पानी के पीपल थे, वो उन्होंने एक पेड़ ढूंढ के निकाला, उसके बीज उन्होंने उखाड़े और खा लिए। तो नेचुरली पुष्पगदन सर ने पूछा उनको कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बीज खाने से हमको 5 मील अभी और भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती है, और एक एनर्जी आती है। तो उन्होंने सैंपल लिए, आरआरएल जम्मू वापस गए, और उसका इन्वेस्टिगेशन किया उन्होंने।
तो उसमें उनको एंटीफटिक प्रॉपर्टी मिली, टॉनिक के जैसा वो इस्तेमाल होता था, और एक और प्रॉपर्टी मिली। उन्होंने 3 पेटेंट अप्लाई किया, 3 पेटेंट उनको मिले। पेटेंट मिलने के बाद में उन्होंने उसको कमर्शियलाइजेशन किया। उन्होंने एक कंपनी को ड्रग बनाने के लिए दिया। जीवनी नाम का उसका एक ड्रग बना, टॉनिक बना, और वो मार्केट में आ गया। अभी देखिए ये जीवनी, ये मार्केट में बेचना शुरू हो गया। उसका फायदा किसको मिला? जे आरआरएल जम्मू, पुष्पगदन और एक कंपनी को मिला। लेकिन जिनका ये ट्रेडिशनल नॉलेज था उनका क्या? कानी ट्राइब। तो केरला गवर्नमेंट को एक सिस्टमेटिक फीडिंग दिया गया एक एनजीओ के थ्रू। ऐसा ऐसा हुआ है। तो केरला गवर्नमेंट ने भी इस चीज को माना, और उन्होंने उनसे बातचीत की कि इनका ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो उन्होंने उस चीज को ड्यू रिस्पेक्ट दिया, और इनिशियली 6,50,000 रुपीज कानी ट्राइब को दिया गया। और उसके बाद में 50% जो भी प्रॉफिट होता है उसका 50% रॉयल्टी कानी ट्राइब को मिलता है। तो इससे हुआ क्या? तो आप देख सकते हो कि पहले उनके घर ऐसे थे, अभी ये इसकी वजह से वो पक्के घरों में रहते हैं। पहले उनकी लिविंग कंडीशंस ऐसी थी, अभी ऐसी है। So friends, this is actually the impact of removing the poverty. ठीक है ना? तो ये ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल इस ढंग से भी किया गया, एंड दिस इज एन एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टॉप ओवर हियर। हमने आज आईपीआर के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स है उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एंड आई होप आप इन सब के बारे में जो अवेयरनेस है उसका इस्तेमाल आप हर जगह करोगे, राइट? So I would like to stop over here for this session. If you have any questions, you may ask. यस मैम। हेलो मैम। हेलो। Yes, sir. हाँ मैम, जैसे आपने बोला मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर में पेटेंट नहीं होता, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में। तो मैम जैसे वहाँ पे न्यू हाँ, इन्वेंशंस होता है तो वो भी पेटेंटेड नहीं होता है। हेलो। हाँ हेलो मैम। हेलो हाँ, मैम, हाँ, आपने बोला कि मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हाँ, एंड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर पेटेंटेड नहीं। are away, मतलब these are kept away from the ये पेटेंटिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार हमारे एक्ट में जो लिखा है वो मैंने आपको बताई हूँ। लेकिन अगर आप कोई डिवाइस बनाते हो, राइट, तो यस। दैट डिवाइस कैन बी पेटेंटेड। डिवाइस और मैम और एनी अदर प्लांट्स लाइक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स और एनी अदर इन्वेंशंस अगर होता है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स जो होता है उसके लिए यू कैन क्लेम सर, यू, बट द होल प्लांट्स ऑन द अर्थ एंड एनिमल ऑन द अर्थ कैन नॉट बी पेटेंटेड। ओके मैम, और एनी अदर इन्वेंशंस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। There are so many inventions, sir, related to agriculture, हाँ and तो there वो are various भी। facets to protect those. जैसे मैंने आपको कहा कि पेटेंट ही करना जरूरी नहीं है। अगर आप कोई हाइब्रिड प्लांट ढूंढ के निकालते हो तो यू कैन गो टू फार्मर्स राइट्स जो है उसमें आप उसको ये कर सकते हो। मैं मेरा यही एक कहना था कि जैसे आईपीआर बोले तो लोगों को लगता है केवल पेटेंट पेटेंट पेटेंट, और फिर सोशल साइंसेस के लोगों को तो हमारा डोमेन है ही नहीं, दिस इज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन अदर एस्पेक्ट्स भी है ना, जैसे नागपुरी संतरा है, नागपुरी संतरा का जीआई भी बन सकता है, राइट? सो ये बाकी के एस्पेक्ट्स जो है उसको भी क्लियर करने की कोशिश मैंने आज की। And ओके मैम। if you search patent databases na sir, so related to agriculture you will get number of patents. हाँ ना, वही 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 मैम बोल रहा हूँ मैं। Yes, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारे इन्वेंशंस है ना, जैसे कोई सॉइल रिपेयरिंग के ऊपर काम करता है, इस अलग अलग। हाँ है ना सर।
तो वही वो तो पेटेंट कर सकते हैं ना फाइल, ये बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, कर सकते हैं ना सर। वो आप एक काम कीजिए, मैंने जो आपको पेटेंट डेटाबेसेस बताया है इंडिया का, उसमें आप कीवर्ड सर्च कीजिए, सो यू विल गेट द रिलेटेड पेटेंट्स। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, व्हाट दे मीन ओके बाय मेथड ऑफ एग्रीकल्चर एंड व्हाट आर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पेटेंटिंग इन एग्रीकल्चर। इसमें, क्योंकि फार्मर भी एक एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट ही है, और जो जैसे ट्रेडिशनल मेथड है जैसे हाँ सीडिंग की या उसको छोड़ के मुझे क्या लगता है जो भी न्यू इन्वेंशन है वो हाँ, पेटेंट सकते हैं, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड्स छोड़ के। छोड़ के, यस। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस। Any question? किसी को कुछ पूछना होगा तो पूछिए। No, ma'am. सैचुरेटेड हो गए होंगे सब लोग। हाँ मॅडम, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिळाली आहे ना, ते सगळं ऐकून सॅच्युरेट झाले असतील. नक्कीच. नाईस पुष्कळ सेशन. पुष्कळ पद्धतीची इन्फॉर्मेशन आम्हाला मिळाली आज. हा तेच. हॅलो. ऍक्च्युली आमचं बॅकग्राऊंड जरी वेगळं असलं तरी व्हेरायटी ऑफ नॉलेज आम्हाला आज मिळालं, व्हेरायटी ऑफ सेक्टर माहित पडले, व्हेरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन आज आम्हाला माहित पडली. जेव्हा की आमचं स्वतःचं इंडिव्हिज्युअल नॉलेज एक पर्टिक्युलर एरियामध्येच आहे. ओके. So I think if Yes. there आम्ही are no सायन्सचे आहे questions, तर तरी we सुद्धा will आम्हाला end the काही session. Yes, हो yes, sir. मॅम. So on behalf of all the participants, I extend my thanks to Dr. Hirwade madam for all the sessions, complete 6 sessions, package of sessions on various aspects of plagiarism, IPR, open access, and literature review. Thank you so much, madam, for all the sessions. Thank you. Thank you, madam. Thank you all. ओके मॅडम, काही जणांनी तुमचा नंबर मागितला होता तर मी त्यांच्यासोबत शेअर केला आहे मॅम तुमचा नंबर. चालेल 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 ना? हा हा चालेल ठीक आहे. चालेल. ओके, फक्त थँक्यू. रेफरन्स द्या म्हणा. हो मी त्यांना म्हटलंय की प्री PhD कोर्सवर अटेंड केलं होतं असं सांगायचं म्हणून. हो हो, बिलकुल ठीक आहे. ओके थँक्यू मॅडम. बिलकुल. ओके, बाय. बाय मॅम, बाय. Thank you all of you. Now we will take a lunch break and will please join by 2 p.m. for our next session. Okay, I am ending the meeting. Okay, ma'am. Okay, thank you all of you.